Hello everyone, and thanks for coming today to this session in which we will be providing an update on recent changes to refugee law in Australia. आपके आने का शुक्रिया। आज हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया के जो पनाह गज़ीनों के क़वानीन में जो रिसेंटली तब्दीली आई उसके बारे में बात करेंगे। You're here at the ASRC, the Asylum Seeker Resource Centre, and the ASRC is the largest provider of aid and services to asylum seekers and has been operating for 13 years. आप जो है यहाँ पे ASRC जो है Asylum Seeker Resource Centre में हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा asylum सर्विसेज का इदारा है जो पिछले 13 साल से काम कर रहा है। We are independent from the Department of Immigration. That means that we do not provide any information to the department or the Australian government without the wishes of our clients, asylum seekers, and we do not charge money for any services we provide to asylum seekers. हम जो हैं वो जो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन है उससे बिल्कुल अलग हैं और हम लोग आपकी इजाज़त के बगैर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देते और जो है हम जो आपको लोगों को सर्विस देते हैं उसके लिए कोई हम आपसे पैसे चार्ज नहीं करते। And we have offices in Dandenong as well as here in Footscray. और हमारे दफातर जो हैं डंडीनोंग में और यहाँ फुट्सक्रे में हैं। We are a community legal centre, and the services we provide include legal services, advocacy, and community legal education. जो है अगला इंसानी हकूक़ का जो प्रोग्राम जिसके प्रोग्राम के थ्रू हम लोग जो है हम कम्युनिटी लीगल सेंटर हैं। उसके अलावा जो है हम लोग जो है कानूनी खिदमात जो होती हैं आपको कोई मदद चाहिए हो वकील वगैरह से या उस तरह की कोई मशवरा वगैरह चाहिए तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। We have advocated strongly against the changes that I'll be going through in these slides in this session, against these policies, which in particular include temporary protection visas and the FastTrack process. हम लोग जो है आपकी मदद करेंगे, आपके लिए एज आ वकील के तौर पे काम करेंगे। ये जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीज़ास और जो फास्ट ट्रैक जो अभी ये प्रोसेस शुरू हुआ है इसके ख़िलाफ़ जो है हम आपके साथ खड़े होंगे और आपके लिए एक वकील के तौर पे काम करेंगे। And we will continue to advocate against these policies and hopefully successfully reverse these policies in the near future. But in the meantime, it is very important that everyone has as much information as possible about these changes and how they affect them. हम लोग जो है बाकायदगी से आप लोगों की मदद करते रहेंगे। इन जो अभी जो रिसेंट तब्दीलियाँ वो क़वानीन में लेके आए हैं और हमें उम्मीद है कि ये जो तब्दीलियाँ आई हैं लॉ के अंदर ये वापस रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक बंदे को है ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन हो। So today what we're going to cover is an overview of the legal changes that have come through in legislation late last year. आज जो है हम लोग इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कवर करेंगे कि जो रिसेंट तब्दीलियां जैसे बयान किया पहले जो आई हैं कानून के अंदर उसके बारे में हम बयान करेंगे। As well as what has been changed in this legal process and who do these changes affect? जो है क्या कानूनी तब्दीलियां आ चुकी हैं और इससे कौन जो है उस असरअंदाज होगा और अब इसके बाद अब क्या होगा। What is going to happen now? What can one expect now moving forward? And also we'll leave time for any questions at the end of the presentation. और इन तब्दीली की वजह से क्या होगा अब आगे और जो आखिर में जो है अगर आपको कोई सवालात हों तो वो हम जवाब देंगे। So most of the changes that we'll be going through today
affect asylum seekers who came to Australia by boat and who did not, and those who came by plane but were not able to get through the airport into the community. जो ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किश्ती के थ्रू आए हैं, और या वो लोग जो जहाज़ के ज़रिए तो आए हैं लेकिन वो एयरपोर्ट के थ्रू दाखिल नहीं हो सके. For those who did arrive by plane on a valid visa and were able to get through the airport, you will be able to apply to the Department of Immigration and Border Protection and also have access to the Refugee Review Tribunal if your application is unsuccessful. जो लोग तो जो है थ्रू जहाज़ आए जिनके पास वैलिड वीज़ा था, वो लोग है डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए, और फिर अगर वीज़े किसी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं होता, तो जो इमिग्रेशन रिव्यू ट्राइब्यूनल है उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हैं. And you will also be eligible to sponsor your immediate family members if you're granted permanent protection. अगर आप वो जो है परमानेंट हिफाजती वीज़ा जो है परमानेंट प्रोटेक्शन वीज़ा अगर आपको दे दिया जाएगा, तो आपका जो है ख़ानदान के और बाशिंदे जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जिनको कहते हैं, जैसे आपकी वाइफ हो गई या बच्चे हो गए, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. So late last year, just prior to Christmas, on the 15th of December, a law was passed called the Resolving the Asylum Legacy Caseload Act. कानून जो पिछले साल लेट दिसंबर 15 को जो पास हुआ, जिसको कहते हैं Resolving the Asylum Legacy Caseload Act, उस कानून का नाम है, जो दिसंबर 2014 15 दिसंबर 2014 को पास हुआ. This act introduced a new process, a FastTrack process for those who are arrived in Australia by boat, and also introduces new types of protection visas called temporary protection visas or TPVs and chefs. इस कानून के तहत जो है वो तेज़ प्रोसेस का कानून आ गया है, जो लोग किश्तियों के ज़रिए यहाँ पे आए हैं उनके केसेस को देखा जाएगा, और और उस कानून के तहत जो है उन्होंने जो है आर्जी तौर पे जो आर्जी वीज़ा होता है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीज़ा जिसको कहते हैं, वो इस कानून के तहत उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है. और शेफ It's on the next page. और दूसरा जो है उसका है शेफ. It also changed aspects of the test for assessing whether someone is a refugee and owed protection in Australia. इस कानून के अंदर और भी कुछ हैं एस्पेक्ट्स जिसके तहत वो असेस करेंगे कि आप वाकई ऑस्ट्रेलिया में जो है रेफ्यूजी के स्टेटस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं. So I'll start with the new process known as the FastTrack process. This will be the process that will be used to assess the claims of those who arrived in Australia by boat after the 13th of August 2012. अभी मैं जो है उस फास्ट ट्रैक के बारे में बयान करूंगा, और इसके तहत जो है जो लोग ऑस्ट्रेलिया में 13 of August 2012 के बाद आए, आफ्टर 13 अगस्त 13 अगस्त 2012 के बाद जो लोग किश्ती पे बैठ के यहाँ पे आए, उनके बारे में मैं बात करूँगा, जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस है. As well as other groups who may be also put through this fast track process. और दूसरे जो ग्रुप है उनके लिए भी ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस जो है उसके बारे में भी. So the starting point will be that an individual in this category will be sent a letter by the department to invite that person to apply for protection.
इस प्रोसेस के थ्रू जो है डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, वो है जो बंदा होगा इंडिविजुअल, उसको थ्रू एक ख़त वो एप्लीकेशन डालने के लिए इनवाइट करेगा पहले. There is likely to be a time frame on that letter indicating when that application must be provided by. And an application, an 866 application form must be submitted along with a statement of claims and any other supporting documents. वो जो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन लेटर आप लोगों को देगा उस पे ये लिखा होगा कि किस डेट तक आपने जो है एप्लीकेशन अपनी डालनी है, और उसके साथ साथ एक फॉर्म 866 जो है वो भी जमा कराना होगा. This application will then be considered by a department official. An interview will be provided with that official to assess the claims, and it's very, very important that all information is provided at the start of the process. उस एप्लीकेशन के बाद जो डिपार्टमेंट का अफसर कोई होगा, ऑफिशियल जो होगा, वो आप लोगों को असेस करेगा और वो आप लोगों का इंटरव्यू लेगा. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है जितनी ज़्यादा मालूमात दे सकें वो उसको दें. It's unclear at the moment when this process will start, but individuals will receive the letter in not all at once. So some people may receive the letter to start with in several months' time, and it may take longer for others to receive the letter to invite them to apply. ये भी सही तौर पर हमें पता नहीं है कि ये जो अमल है ये कब शुरू होगा. कुछ हो सकता है कुछ लोग जो है अगले कुछ महीनों में वो लेटर रिसीव करें, या ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए वो लेटर, लेकिन अभी हमें सही पता नहीं है कि कब ये शुरू होगा. And we believe that those who arrived earlier in Australia will receive the letter before others who arrived later. हम समझते हैं कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में पहले आए उनको जो है वो ख़त जो है पहले मिलेगा, और जो लोग बाद में आए उनको वो ख़त जो है बाद में मिलेगा. If an application is rejected by the department, the minister or an official at the department will decide whether to refer that case to a review to the Immigration Assessment Authority or IAA. अगर आप लोगों का वीज़ा या केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो मिनिस्टर या जो है ऑफिशियल जो है फिर वो है उस केस को जो है इमिग्रेशन असेसमेंट अथॉरिटी को रिव्यू के लिए भेज सकता है, जो IAA के नाम से जाने जाती है. Some unsuccessful applications may be deemed FastTrack review excluded, which would mean that they would not be referred for review, and it would be considered that their applications had been finalised. कुछ जो है उनमें से जो क्लेम जो होंगे कामयाब नहीं हो सकेंगे वो है फास्ट ट्रैक रिव्यू के थ्रू जा सकते हैं. हालांकि ये अभी जो प्रोसेस है हमें सही तरह पता नहीं है, ये जो फास्ट ट्रैक का प्रोसेस है. But if that is a decision that's made to exclude someone from review, that decision itself could be challenged in the courts with the assistance of a lawyer. अगर जो है आप फ़र्ज़ किया जो फास्ट ट्रैक रिव्यू है उससे जो अलहदा कर दिए जाते हैं तो आपके पास ये हक होगा कि आप जो है वो कोर्ट के अंदर जाके रिव्यू को चैलेंज भी कर सकते हैं उसके ख़िलाफ़. So the IAA, which is the review body, will be based in Sydney and Melbourne. IA Immigration Assessment Authority जो है वो सिडनी और मेलबर्न के अंदर बेस्ड है. It will be based in the offices of the Refugee Review Tribunal, though it will be considered separate to the RRT. इसका जो है दफ्तर वो रेफ्यूजी
रेफ्यूजी रिव्यू ट्रिब्यूनल के अंदर होगा, लेकिन ये होगा ये आरटी के अंदर तो होगा इसका दफ्तर, लेकिन इसका सारा अमल जो है उससे मुख्तलिफ होगा, उससे लिंक नहीं होगा. Generally, the review by the IAA will be done on the papers, which means that there will not be a hearing provided to the applicant. जो ज़्यादा टाइम के में जो है जो रिव्यू है वो पेपर पे होगा. इसका मतलब ये है कि वो बातचीत के थ्रू वो रिव्यू नहीं होगा, वो मोस्टली पेपर के ऊपर होगा. Sorry, the IAA will not be required to consider any new information that was not provided to the Department of Immigration in the first stage of the process. जो IAA है वो जब आप लोगों का केस देखेगी तो वो कोई भी नई मालूमात वो आप लोगों से नहीं लेगी. जो मालूमात आपने डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन को नहीं दी होगी तो वो कोई भी नई मालूमात आपसे नहीं लेंगे उस रिव्यू के दौरान. If the IAA does not find an applicant to be a refugee, then a court system will be available to review that decision, and that will be around the question of whether there was an error of law. अच्छा, अगर IAA जो है वो आप लोगों को कहती है कि आप जो है वो यहाँ पे रिफ्यूजी नहीं हैं, हम समझते हैं आप माजर नहीं हैं, तो फिर आप लोग जो है जो कोर्ट है उसके अंदर जा सकते हैं ताकि कोर्ट देखे कहीं कानून के अंदर तो नहीं कहीं कोई किसी वजह से कोई मसला हुआ. Temporary protection visas affect asylum seekers who arrived by boat and asylum seekers who have arrived by plane but who were not able to clear immigration because they didn't have a valid visa. ये जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीज़ा है ये उन लोगों के ये असाइलम सीकर के लिए उन असाइलम सीकर के लिए है जो किश्ती के थ्रू आए या जो जहाज़ के ज़रिए तो आए लेकिन वो एयरपोर्ट से बाहर इमिग्रेशन क्लियर करके नहीं आ सके. Temporary protection visas don't affect asylum seekers who arrived by plane with a valid visa and have been able to apply for protection. They are still eligible in that application process. टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीज़ा जो है उन असाइलम सीकर को अफेक्ट नहीं करेगा जो लोग जहाज़ के ज़रिए आए और उनके पास ऑस्ट्रेलिया के लिए वैलिड वीज़ा था, वो स्टिल जो है परमानेंट प्रोटेक्शन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Temporary protection visas are valid for 3 years, for up to 3 years. जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीज़ा है ये जो है 3 साल के लिए वैलिड होगा. With a TPV, you will be able to work, you'll have access to Medicare, access to Social Security and access to education for school-aged children. अच्छा, इस वीज़े के तहत आप काम भी कर सकते हैं, आपको मेडिकेयर की फैसिलिटी की भी सहूलत होगी, आप लोग जो है सोशल सिक्योरिटी के भी लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्कूल के जो बच्चा होगा जो स्कूल जाने के लिए होगा उसको उसके एजुकेशन के लिए भी पैसे दिए जाएंगे. You will have to reapply for a temporary protection visa and re-establish your protection claims to obtain another temporary protection visa. You're not eligible for permanent protection. आप जो है दोबारा टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है परमानेंट प्रोटेक्शन वीज़े के लिए आप वो एलिजिबल ही नहीं हैं. You cannot access family reunion on a temporary protection visa. आप लोग जो है टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीज़ा पे जो है फैमिली रीयूनियन को एक्सेस नहीं कर सकते. If you are on a temporary protection visa, you may be able to travel to a third country. However, you will have to obtain written permission and it will be because of compelling circumstances. अगर आप लोग जो है टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीज़ा पे हैं तो आप हो सकता है कि किसी तीसरे मुल्क सफ़र कर सकें, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इजाज़त लेके जाना पड़ेगा. This system is yet to be developed fully. ये सारा जो अमल है इसको अभी डेवलप होना है, सारे को अभी ये बना नहीं है, इसको बनना है सही तरह. You're also able to apply for a safe haven enterprise visa, which is known as SHEV. आप लोग जो है
सेफ हेवन एंटरप्राइज वीज़ा जो कि SHEV शेफ़ के नाम से जाना जाता है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। This visa will be valid for 5 years. You will be able to work and study and have access to Medicare and access to early health assessment and intervention services. ये जो वीज़ा है SHEV, इस पे आप 5 साल के लिए वैलिड होगा। आप इस पे काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोगों को जो है मेडिकेयर का एक्सेस होगा और जो है सारी आपकी सेहत की जो असेसमेंट है वो भी इसके थ्रू हो सकती है। You will also have access to Social Security and access to education for school-aged children. However, you won't have access to family reunion. आप लोग जो है आपको एक्सेस होगा समाजी हिफाजत का। आप जो है जो बच्चे आपके स्कूल जाने के लिए होंगे उनकी एजुकेशन के लिए, लेकिन इस पे आप जो है वो फैमिली रीयूनियन का एक्सेस आपको नहीं होगा इस वीज़े के ऊपर। It is not yet possible to apply for a SHEV. They have not specified a date when this system will be rolled out, but we anticipate it being soon. अभी आप जो है इस वीज़ा शेफ़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो है कब ये शुरू होगा, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि जल्दी जो है रोल आउट हो जाएगा, यानी स्टार्ट हो जाएगा। Once it is created, people will have the opportunity to apply for a SHEV if they want. जब ये बन जाएगा तो उस वक्त लोगों के पास ये सहूलत मौजूद होगी कि वो इस वीज़ा शेफ़ के लिए अप्लाई कर सकें। This type of visa encourages you to work and study and live in a designated regional area. These regional areas haven't been determined yet. शेफ़ जो है आप लोगों को ये इनकरेज करता है कि आप लोग जो है जो इनके वो तैयार करदा रीजनल एरियाज़ हैं ना उनमें जाके रहें, लेकिन अभी जो रीजनल एरियाज़ का तयन नहीं हुआ। After 5 years, after the 5-year SHEV visa, if you have worked or studied in a regional area for 3.5 years and you only access Centrelink for 18 months or less, you can apply for certain onshore visas. इस शेफ़ के 5 साल गुजरने के बाद अगर आप रीजनल एरिया में 3.5 साल तक काम या पढ़ चुके हैं और आपने है जो है सिर्फ 18 महीने तक सेंट्रल लिंक को एक्सेस किया है, तो फिर जो आप है कुछ और तरह के ऑन शोर वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। You can apply for certain onshore visas, but you must satisfy the criteria of these visas. There are 32 types all up. आप लोग जो है जैसे पहले बताया गया कि कुछ ऑन शोर वीज़ास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो टोटल 32 हैं, 32 मुख्तलिफ टाइप के वीज़ा हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनका जो है क्राइटेरिया उसको पहले पूरा करना होगा। Of the 32 types of visas, there is a mixture of temporary and permanent ones. Some include temporary work or skilled visa, the partner visa, child visa, and remaining relative visa. इन 32 जो मुख्तलिफ किस्मों के आर्जी और परमानेंट वीज़ा है, उसके अंदर जो है आर्जी वर्क का वीज़ा जिसकी कैटेगरी है 4, 5, 7, या पार्टनर वीज़ा जो है 801 या 820, या जो बच्चों का वीज़ा है 802, या जो दूसरे आपके अज़ीज़ो कारब जो हो रह जाएं उनके लिए जो है 835। Like the temporary protection visa, SHEV holders may be allowed to travel to a third country but not your home country if they can demonstrate compassionate or compelling circumstances. And you must also obtain written permission to do this. शेफ़ वीज़े के ऊपर आप लोग जो है अपने मुल्क को छोड़ के किसी तीसरे मुल्क के अंदर आप इजाज़त होगी आपको जाने की, लेकिन उसके लिए आपको हमसे पहले रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी और बताना होगा कि आपके इस तरह के हालात हैं कि आप तीसरे मुल्क में जाने के लिए आपको ज़रूरी है। Okay, so the next section to discuss involves some changes that have been made to refugee law in Australia. अभी अगला सेक्शन में जो हम लोग बात करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पनाह गज़ीनों के क़वानीन में जो तब्दीली है उसके बारे में हम बात करेंगे। Now these changes affect both plane and boat arrival asylum seekers, but these changes have not yet been introduced into law, which means that anyone who has applied for protection already
or is applying up to today, and maybe the short-term future, are not affected by these changes. ये कवानीन अभी तक जो है कानून के अंदर नहीं डाले गए, इस वजह से जो लोग पहले वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या पहुंच चुके हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। और ये जो है कवानीन दोनों, जो लोग तो किश्ती के थ्रू आए या जो लोग जहाज़ के थ्रू आए, उन दोनों पे अप्लाई होगा। The main change to the law will relate to changes to the question of whether one could relocate safely in their country to avoid the risk of harm. जो सबसे बड़ी तब्दीली इस कानून के अंदर लाई गई है उसका ये है कि वो जो बंदा हो उसको उसके अपने मुल्क के अंदर ही रीलोकेट, मतलब कि दोबारा उसको वहाँ पे रहने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, इस सूरत पे कि उसको वहाँ पे कोई तकलीफ़ या कोई उसको ख़तरा वहाँ पे ना हो। This can often be an important issue in a case relating to someone from Pakistan. So I would strongly advise obtaining some advice from a registered migration agent who is knowledgeable in the area of protection visas, to get advice on how these changes may affect you and your case. ये ज़रूरी है कि आप जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है ना, उससे इन तब्दीलियों के बारे में इंफॉर्मेशन मालूमात लें, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी सीरियस हो सकती है उन पनाहगज़ीनों के लिए जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं। We're now going to move on to work rights for bridging visa E holders. So the government has said that work rights may be granted to some BVE holders, however this isn't guaranteed. अभी जो है मैं जो है वर्क राइट्स जो BVE वीज़ा होल्डर हैं उनके बारे में बात करूँगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इन वीज़ा होल्डर्स को हो सकता है कि काम करने की इजाज़त दे जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है अभी। If you arrived by boat and have already been unsuccessful at the Department of Immigration, the Refugee Review Tribunal or Independent Merits Review, you are not eligible for work rights. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किश्ती के थ्रू आए हैं और आपकी जो है दरख्वास्त वो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन बॉर्डर प्रोटेक्शन या जो है रिफ्यूजी रिव्यू ट्रिब्यूनल में आपको वो रिजेक्ट होगी, अनसक्सेसफुल होगी है, तो फिर आप काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। For those of you who aren't in that situation, the department will contact you when you may be eligible for work rights. There isn't a set time frame for this and it can be quite a slow process. आप लोगों में से जो है वो अगर उस जो है सिचुएशन के अंदर नहीं है, तो फिर जो है डिपार्टमेंट आपसे रब्ता करेगा कि आप लोगों को कब काम करने का जो है हक मिलेगा, लेकिन ये अमल जो है काफ़ी आस्ता है। The department has indicated that if you do have a job offer, you can let them know by contacting them at this email address. You can provide your IMI card number and information about the job offer. This may make them prioritise consideration of your work rights, but it is still likely to take some time. डिपार्टमेंट ये बयान कर चुका है कि अगर आपके पास कोई जॉब की कोई ऑफ़र हो तो आप इस ईमेल एड्रेस जो है bve.reporting@immi.gov.au पे उनको बताएं। उनको आप अपना इम्मी कार्ड का नंबर और जो जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन है वो दें। ये हो सकता है कि आपके जो है केस को प्रायोरिटाइज़ कर दे आपको वर्क राइट दिलवाने में, लेकिन इसके बावजूद जो है ये कुछ टाइम लेगा। Okay, so now I'll just address some of the ways that these changes may affect people in particular ways. अच्छा, अब मैं ये बयान करता हूँ कि ये जो है ये तब्दीलियाँ जो है अब बंदे को कैसे, एक बंदे को स्पेसिफिकली जो है वो असरअंदाज करेंगी। So there are generally 3 different groups of people in the community at the moment who have arrived by boat.
जो है 3 किस्म के जो है वो ग्रुप हैं जो यहाँ पे किश्ती के थ्रू पहुँचे हैं और कम्युनिटी के अंदर हैं वो. There are a few individuals, though this is probably the smallest group, who have already received permission from the minister to apply for protection and whose protection applications are currently being processed. आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत थोड़े हैं जिनको जो है मिनिस्टर ने इजाज़त दी है प्रोटेक्शन वीज़े के अप्लाई करने के लिए और आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी प्रोसेस में है. The second category involves those who have not received permission from the minister to apply but have lodged their applications anyway. दूसरा ग्रुप वो है जिनको मिनिस्टर ने जो वज़ीर ने इजाज़त नहीं दी लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने किसी न किसी तरह से अप्लाई कर दिया. And then there are those who have not yet applied for protection, which is probably the largest group where the forms have not been provided. और तीसरा जो मेरे ख्याल से ज़्यादा तादाद में लोग हैं जिन्होंने अभी तक जो है प्रोटेक्शन वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया. For those who have lodged an application already and that application is being processed, that processing will continue and if successful a TPV or a SHEV will be granted. आप में से वो लोग जिनको वज़ीर ने इजाज़त दी और जो है आप लोग अपने वीज़ों के लिए अप्लाई कर चुके उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस होंगी और जो है आप लोग या TPV या जो है शेफ वीज़ा ग्रांट किए जाएंगे. And I should say that it is our understanding that in that situation an individual will be able to choose whether they would like a TPV or a SHEV. It will be up to the applicant to decide. अच्छा मैं ये समझता हूँ कि जो एप्लीकेंट होगा उसको ये होगी इजाज़त कि वो ख़ुद जो है वो चूज़ करे कि वो TPV लेना चाहता है या शेफ वीज़ा लेना चाहता है. If the minister has not provided permission to apply yet, but you had applied anyway, your application will now go through the FastTrack process, and you may be contacted to provide further information to the department. अगर आप लोगों को वज़ीर ने इजाज़त नहीं दी थी उस प्रोटेक्शन वीज़ा को अप्लाई करने के लिए लेकिन इसके बावजूद आपने किसी न किसी तरह से अगर वीज़ा अप्लाई कर दिया था तो अब आप लोगों की एप्लीकेशन जो है फास्ट ट्रैक जो सिस्टम है उसके थ्रू जाएगी. If successful, again, you will have the option of choosing a TPV or a SHEV. अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो इसके फिर भी आपको ये सहूलत मौजूद होगी कि आप वो TPV लेना चाहते हैं या शेफ लेना चाहते हैं. And it's very, very important to make sure that the department has your correct contact details at all times so that you receive all correspondence from the department. ये ज़रूरी है कि जो डिपार्टमेंट है उसके पास आप लोगों की जो अप टू डेट डिटेल्स हैं यानी कि आपका घर का एड्रेस या आपके फ़ोन नंबर्स वगैरह वो उनके पास अप टू डेट हैं ताकि वो किसी सूरत में अगर आपसे रब्ता करना चाहे तो वो करें. We're now going to go through what you can do to kind of help yourself at the moment. It's in the sheets that we've given you. But as Simon just said, the most important thing is to keep your contact information up to date. So you can do this by calling that number, 1300 728 662, or completing a Form 929, which is on the link. It's an internet link on the form that we've provided. जैसा कि साइमन ने पहले बताया कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है अपने कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स को जो है अपडेट रखें और वो आप कैसे कर सकते हैं. या तो जो नंबर सामने आपको नज़र आ रहा है 1300728662 या जो है फॉर्म 929 वो फिल करें. उसका लिंक जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा. When you complete a Form 929, you must complete questions 2 to 6 and sign at question 14. The department doesn't confirm that they've received this form, so once you've sent it, that's sufficient. जब आप लोग जो है फॉर्म 929 वो फिल कर रहे हों तो ये ज़रूरी है कि आप जो है 2 से 6 जो सवालात हैं उनको पूरा करें और आप साइन करें
14 जो नंबर सवाल नंबर 14 उस पर साइन करें, और जो डिपार्टमेंट है वो जब आप उसको फॉर्म भेजेंगे तो वो ये आपको नहीं बताएगा कि हमें फॉर्म मिल गया है नहीं मिला. You can also submit a Freedom of Information application, which is a way to request a copy of your file. And this is what that form looks like. आप जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं. When you send the Freedom of Information form to 424A, you must have proof of ID attached to it, and this can be your IMI card. तो जब आप लोग जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये जो फॉर्म 424A है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है वो आइडेंटिफिकेशन शनाख्त का जो है सबूत लाजमी अटैच करें जो कि आपका IMI कार्ड है. In the box that asks what you are seeking from Freedom of Information, you should request internal memos and correspondence, recordings and written notes of interviews, and any records of decisions relating to screening in or out. ये जो है जब आप ये रिक्वेस्ट करेंगे अपनी जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट है तो उसमें आप लोगों को क्या बताना है वो ये है कि जो आप लोगों की इंटरनली जो उनसे बातचीत हुई या कोई मेमोस हैं वो जो है रिकॉर्ड जो है रिटन नोट्स ऑफ इंटरव्यूज़, जो इंटरव्यूज़ के रिटन नोट्स होते हैं ना उनका रिकॉर्ड, या जो है कोई भी जो रिकॉर्ड जो डिसीजन हुआ हो स्क्रीनिंग इन या आउट का उसके लिए. It's free to apply to obtain all your information, and you can post or email the form. ये आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है फ्री ऑफ चार्ज ले सकते हैं. आप जो है फॉर्म या तो ईमेल कर सकते हैं या उनको पोस्ट कर सकते हैं. You can choose to receive the information in different forms, in a printed copy, a CD, or an email of documents, and it usually takes about a month to receive it all. आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन या तो आप उनको कहेंगे प्रिंटेड कापी चाहिए या CD पे या ईमेल के थ्रू जो है वो आपको भेज सकते हैं, और ये अमूमन जो है 1 महीना लेता है. The next thing we recommend is preparing a draft of your protection visa application, which is what I have here. अब अगली चीज़ जो है अब अभी हम आप ड्राफ्ट बनाएंगे आपके जो है प्रोटेक्शन वीज़ा उसके लिए जो मैं अभी आपको दे रही हूँ. The protection visa application form is available on the internet, and you should try to complete as much of it as possible, but you don't want to guess any information or put in anything that's incorrect. ये प्रोटेक्शन वीज़े का फॉर्म जो है इंटरनेट पे मौजूद है, और ये ज़रूरी है कि आप जितने से ज़्यादा जितनी मालूमात हैं वो उसके अंदर फिलअप करें, लेकिन आपको कोई भी चीज़ जो है गैस नहीं करनी. The kind of information that you'll be required to complete in the application forms relate to all the addresses you've lived in and when you lived there, all the places you've studied and when you completed those studies, all the places you have worked and when, and information about all of your family members. ये उस फॉर्म के अंदर जो अमूमन तौर पर इंफॉर्मेशन आप लोगों को फिल करने के लिए कही जाएगी उसमें जो है आप लोगों के सारे जो है पते जहाँ पे आप रह चुके हैं, आप जहाँ से पढ़े हैं, कब पढ़े हैं, और जो है आप कहाँ काम कर चुके हैं और कब काम किया है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आपके ख़ानदान के लोगों के बारे में. We would strongly recommend obtaining migration advice before submitting your forms. हम लोग जो है आप लोगों को सख्ती से ये मशवरा देते हैं कि आप लोग जो है वो फॉर्म जमा कराने से पहले इमिग्रेशन अदायात ले लें किसी से. The next step is to prepare a draft statement of claims. This is a written copy of your story and lists all the reasons that you can't go home. अभी अगला जो है स्टेप वो है कि आपके सारे क्लेम्स की एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाए. ये ड्राफ्ट एक होती है रिटन स्टेटमेंट जिसमें आप वो अपनी कहानी बयान करते हैं कि आप अपने घर वापस क्यों नहीं जा सकते. There is an internet link on the fact sheet that we handed out, which gives a good explanation of how to prepare a statement of claims, and it is also on our website that you can go to. ये जो अभी हमने आप लोगों को ये हैंड आउट दिया है इसका ये इंटरनेट पे भी मौजूद है और हमारी वेबसाइट पे भी है. आप देख सकते हैं कि कैसे तैयार करना है. Again, we would recommend that you obtain migration advice before you submit your statement of claims.
दोबारा फिर हम आपको एक दफ़ा ये हिदायत करते हैं कि आप ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स जमा कराने से पहले माइग्रेशन की हदायत किसी से नसीहत मशवरा पहले ले लें. The next step is to collect documents that support your story. These could include identity documents. अगला जो है कदम जो है वो सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करना है जो आपकी कहानी को वो सपोर्ट कर सकें. और इसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर जो है आपकी जो शनाख्त के हैं डॉक्यूमेंट्स वो हैं. Other documents that might be relevant would be letters, photographs, membership cards, medical or counselling reports, or news articles that relate to your story. इन जो हैं सबूत के अंदर क्या हो सकता है, खतूत हो सकते हैं, मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ हो सकते हैं, किसी मुख्तलिफ मेंबरशिप कार्ड्स हो सकते हैं, या जो है मेडिकल या कोई अगर आपकी कोई काउंसलिंग हुई उसकी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या जो है अखबारात के अंदर जो है न्यूज़ हो सकती हैं जो आपकी कहानी को वो है सपोर्ट करें. If the documents aren't in English, they need to be translated into English by an official translating service, and we have links to those services on that form and also on our website. अगर कोई भी जो है डॉक्यूमेंट वो इंग्लिश में नहीं है तो ये ज़रूरी है कि उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो किसी ऑफिशियल ट्रांसलेशन सर्विस से. उसके लिंक इस फॉर्म के अंदर भी मौजूद हैं और हमारी वेबसाइट पे भी है जहाँ से आप देख सकते हैं. We recommend trying to find a lawyer that will be able to assist you. It's unlikely that you'll be able to get IAAS legal assistance from the government now unless you're an unaccompanied minor, in which case it may be available to you. हम लोग जो है ये हिदायत करते हैं कि आप लोग जो है किसी वकील से जो है मदद लें. और ये इस वक्त आप लोगों को हुकूमत कोई जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगी. ये जो है हुकूमत से जो IAAS है ये उस सूरत में हो सकती है अगर आपके पास कोई छोटे बच्चे आपके साथ हों तो, लेकिन आपको नहीं. We do have a sheet available with information about lawyers, and you can also find that on our website. And obviously our program, the Human Rights Law program, is able to offer some assistance, so I'll go through that now. हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है सारे जो वकील हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है. इसके अलावा जो है इंसानी हकूक़ का प्रोग्राम जो है उसके तहत भी आप थोड़ी मदद ले सकते हैं जिसके बारे में मैं अभी बयान करूँगी. The Human Rights Law program can provide legal assistance in a few different ways. We can offer a place at a legal workshop. जो है इंसानी हकूक़ का प्रोग्राम जो है उसके तहत एक तो आप जो है कानूनी मदद हम आप लोगों को दे सकते हैं. उसके तहत क्या होगा कि जो भी है जो कानूनी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें आप जगह आपको मिल सकती है. And also provide limited assistance appointments, so that you have a limited number of appointments to help you go through whichever stage of the process you're at. और आप लोगों को उस प्रोग्राम के थ्रू जो है कुछ महदूद तादाद में आपको मदद के लिए कुछ अपॉइंटमेंट्स हम लोग आपको दिलवा सकते हैं. And we also offer full representation to some clients, which would mean that we would be your legal representation and work with you throughout all throughout all the legal process stages of the legal process. कुछ केसेस के अंदर हम जो क्लाइंट्स को है फुल रिप्रेजेंटेशंस मुहैया करते हैं, यानी कि वो सारे अमल के दौरान हम लोग आपके साथ होंगे. हम आपके लिए एज आ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके लिए हम काम करेंगे. We also engage in community legal education, which is kind of like what we're doing right now, talking to bigger groups with an interpreter and going through changes in policy and how they affect you guys. हम लोग जो है वो कम्युनिटी लीगल एजुकेशन भी हैं जो बयान करते हैं कि किस तरह जो कानून जो हैं वो आप लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरप्रेटर ये है इसके थ्रू. And the lawyers also work in policy and advocacy, which is basically advocating to stop some of the changes that are trying to come through, which negatively impact asylum seekers.
और जो है वो वकील जो हैं वो जो पॉलिसी जो बनती है उसके ख़िलाफ़ भी जो है आप लोगों के लिए वो काम करते हैं ताकि जो कवानीन जो हैं रेफ्यूजी उनको अफेक्ट करें वो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो सकें और आपकी मदद करें. The Human Rights Law Program can assist people who arrive by both plane and boat, and people who are in detention in Victoria, and people who are at the Department of Immigration stage, the Refugee Review Tribunal stage, the Federal Circuit Court stage, the High Court, and the Ministerial Intervention Unit. इंसानी हुकूक के प्रोग्राम के तहत उन लोगों को मदद फराहम की जा सकती है जो कि किश्ती या प्लेन के थ्रू आए हों, या पीपल जो है वो डिटेंशन में हों, या जो है पीपल डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन बॉर्डर प्रोटेक्शन, रिफ्यूजी रिव्यू ट्रिब्यूनल, फेडरल सर्कल कोर्ट, Federal Court, High Court, and Ministry of Intervention. Ministerial Intervention Unit. Ministerial Intervention Unit. We aren't able to assist people who are outside of Victoria, people with family reunion needs, or people who are at the MRT. हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते जो विक्टोरिया से बाहर हैं या जो जिनको फैमिली रीयूनियन की ज़रूरत है या वो लोग जो MRT में है. If you would like to request legal assistance from the Human Rights Law Program, there are several ways to do this. अगर आप लोग जो है इंसानी हकूक़ के प्रोग्राम कानून के प्रोग्राम के थ्रू अगर मदद चाहते हैं तो जो मुख्तलिफ ज़रिए हैं जो आप उनके थ्रू जो है मदद ले सकते हैं. You can contact the centre on 93266066 or by email to legal_triage@asrc.org.au. आप लोग जो है सेंटर को फ़ोन कर सकते हैं. फ़ोन नंबर है 93266066 या ईमेल जो है legal_triage@asrc.org.au. You are also able to drop in person and attend the legal triage desk, which is located at the front of the centre in the members area. आप जो है ख़ुद भी आके जो है वो इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं जो लीगल ट्राइज डेस्क है उसके ऊपर. We would prioritise people with urgent deadlines, but we will also endeavour to get back to you within 2 weeks of your request. हम अमूमन जो है उन लोगों को पहले देखते हैं जिनकी डेडलाइंस जो है अर्जेंट डेडलाइंस हों, या हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि हर एक जो है बंदे को 2 हफ्तों के अंदर अंदर उसको जवाब दे सकें. That's it for our presentation. Thank you for listening.